everyone, welcome to the new video with a new chapter, A Fisherman. So let's start the chapter. Chapter 5, A Fisherman, Be Satisfied. Introduction of the lesson. Here is a story of a fisherman and his wife की story है. Once the fisherman caught a fish that was a fairy princess. उसने एक fish पकड़ी थी और वो actual में fish fairy princess थी. His wife was greedy. उसकी wife बहुत लालची थी. Now read the story to know the result of her greed. Now the moral here, we should be content and satisfied with what we have. जो भी हमारे पास होता है उसमें हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. Once there lived a fisherman in a small but hut near the seashore with his wife. तो एक बार सी शोर के पास एक फिशरमैन अपने छोटी सी हट में अपनी वाइफ के साथ रहता था. फिशरमैन वेंट टू द सी एवरीडे टू कैच फिश. वो डेली सी में जाता था मछली पकड़ने. हिज वाइफ वुड टेक दोज फिश टू द मार्केट एंड सेल देम. अब वो उसकी जो वाइफ थी वो फिश को ले जाती थी मार्केट में, उनको बेचती थी. Thus they lived happily. वो बहुत खुश रहते थे. One day he caught a beautiful fish. एक दिन उन्होंने beautiful fish को पकड़ लिया. It tried to be free, but it could not get out of the net. तो उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, but वो नेट से बाहर नहीं आई. Suddenly the fish spoke to the fisherman. Suddenly fish ने fisherman से बोला, Please let me go. कि मुझे जाने दो. I'm not a fish but a fairy princess. मैं fish नहीं हूँ लेकिन एक fairy princess हूँ. The fisherman was surprised to see a fish speaking. He was very merciful and let her go. अब वो बहुत ही merciful था, उसने उसको जाने दिया. That day he returned home empty-handed. और उस दिन वो खाली हाथ घर आया. On reaching home, he explained everything to his wife. घर पहुंच के उसने अपनी वाइफ को सब बताया. She got angry and said, उसे गुस्सा आया और उसने बोला, You could at least have asked for one wish from that fairy princess. At least एक wish तो तुम मांग सकते थे. The fisherman replied, What would I have asked for? तो मैं क्या मांगता उससे? The greedy wife of the fisherman said, Go to the sea again and ask the fairy princess for a pretty cottage in place of this hut. उसने कहा एक काम करो, तुम फिर से जाओ उसके पास और उनसे एक बहुत ही प्यारा सा कॉटेज मांगो. Though the fisherman was not willing to go. फिशरमैन तो नहीं जाना चाहता था. He went to the sea to make his wife happy. वो सी पे गया अपनी वाइफ की खुशी के लिए. As soon as the fisherman reached the seashore, as soon as fisherman seashore पर पहुंचा, the fairy princess appeared before him. वो उसके सामने appear हो गई and asked, Why did you come back, dear friend? उसने कहा तुम वापस क्यों आए हो, dear friend? He replied, Fairy princess, my wife wants to have a pretty cottage instead of my little hut. उसने रिप्लाई किया कि फेरी प्रिंसेस, मेरी जो वाइफ है वो चाहती है कि हट की जगह पे हमारे पास एक कॉटेज हो. The princess said, Go back to your home and you will find a beautiful cottage there as your wife wished. अब उसने प्रिंसेस ने बोला तुम घर जाओ, तुम जब घर पहुंचोगे तुम्हारी वाइफ को मिल जाएगा जो चाहिए. Saying this, the fairy princess disappeared. ये कहकर वो गायब हो गई. The fisherman returned home and to his surprise found a beautiful cottage there. जब वो वापस आया तो देखकर सरप्राइज हो गया कि वहां पर तो बहुत सुंदर सा कॉटेज था. They lived there happily. वो वहां खुशी खुशी रहने लगे. Some days later, his greedy wife felt the cottage was small and wished to live in a castle. अब कुछ दिन बाद उसकी जो ग्रेडी वाइफ थी उसको ये लगने लगा कि अब कॉटेज भी छोटा है, अब उसको बड़ा घर चाहिए था, महल चाहिए था. सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो टू द प्रिंसेस अगेन. तो उसने फिर से अपने हस्बैंड को बोला कि वो प्रिंसेस के पास जाए. द फिशरमैन वेंट टू द प्रिंसेस एंड टोल्ड हर अबाउट द वाइफ्स विश. अब फिशरमैन प्रिंसेस के पास गया और उसने अपनी वाइफ की विश के बारे में बताया. द फेरी प्रिंसेस एक्सेप्टेड हिज वाइफ्स विश एंड सेड गो बैक टू योर होम एंड यू विल फाइंड अ कैसल देयर. अब फेरी प्रिंसेस ने उसकी वाइफ की विश को एक्सेप्ट किया और उसने बोला ठीक है तुम घर जाओ और वहां पर तुम्हें कैसल मिलेगा एज योर वाइफ विश. Saying this, the fairy princess disappeared. ये कह के fairy princess गायब हो जाती है. The fisherman returned home. Fisherman घर वापस आता है and to his surprise found a beautiful castle in place of cottage. वो देख के हैरान हो जाता है कि वहां पे कॉटेज भी नहीं है, उससे भी बड़ा कैसल है. On getting a castle, his wife was still not satisfied. अब कैसल के बाद भी वो satisfied नहीं हुई. She wished for more. उसको फिर चाहिए था और तो she sent her husband to the fairy princess to ask for a palace. कि वो अपने प्रिंसेस के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे पैलेस चाहिए. The fisherman went to the fairy princess के पास गया and told her about his wife's wish के बारे में बताया. At this she said, Your wife is a greedy woman. तो उसने बोला कि तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ही लालची है. She will never be satisfied with anything in this world. तो किस वर्ल्ड में किसी भी चीज से वो satisfied नहीं हो सकती. Go home. तुम घर जाओ. You will find a place suitable to your wife. तुम्हें suitable जगह मिल जाएगी अपनी वाइफ के लिए. When the fisherman reached home, जब fisherman घर पहुंचा, he saw his wife sitting in the old hut they once had. तो उसकी वाइफ वहीं उस ओल्ड हट में बैठी हुई थी जो उनके पास पहले थी. His wife now understood that she should be content with what she had. अब उसकी वाइफ को रियलाइज हो गया था कि जो हमारे पास है उसमें हमें खुश होना चाहिए. Thought of the lesson, never be greedy. Greed always results in the worst. Quote of the thought, contentment is the best way to be satisfied. So here, the exercise, take the correct option.
द फिशरमैन लिव्ड विद हिज, फिशरमैन किसके साथ रहता था? अपनी वाइफ के साथ. द फिश वॉज वुमेन, गर्ल और अ फेरी प्रिंसेस थी. द फिशरमैन्स वाइफ वॉज, फिशरमैन की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा ग्रिडी थी. इन द एंड द वाइफ गॉट, अब एंड में वाइफ को क्या मिल गया था? हट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स. द फिशरमैन कॉट अ ब्यूटीफुल, फिशरमैन ने क्या कॉट करा था? ब्यूटीफुल सी फिश. द फिशरमैन्स वाइफ फेल्ट द कॉटेज, कॉटेज जो था वो बहुत ही उसको स्मॉल लग रहा था. द फिशरमैन्स वाइफ वॉज नॉट, उसकी वाइफ जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी. वी शुड बी डैश विद वॉट वी हैव, तो वी शुड बी कंटेंट होना चाहिए जो हमारे पास है. नाउ राइट टी फॉर द ट्रू, एफ फॉर फॉल्स. फिशरमैन वॉज पुअर, ट्रू. द फिशरमैन सेट द फेरी प्रिंसेस, उसने फ्री रखा, ट्रू. फिशरमैन्स वाइफ आस्क्ड फॉर गोल्ड, फॉल्स. फिशरमैन्स वाइफ आस्क्ड फॉर अ कैसल टू लिव इन, ट्रू. I hope you all have understood the chapter. You should not be greedy and you should be content with what we have. Satisfied होना चाहिए, हमारे पास जितनी चीज है उसमें खुश रहना चाहिए. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.